So today we are moving towards the important section of this chapter, and that is your electric dipole. So firstly we have to define the electric dipole. Electric dipole is what? When two equal and opposite charges are placed at very small finite distance, then complete system is said to be your electric dipole. मतलब क्या है ये simple सा. Suppose I have this charge that is your minus q and this is your another charge that is your plus q. These are two equal and opposite charges. And they are placed at very small finite distance. ये बात समझ में आ रहा? They are placed at very small finite distance. Then this complete system is called your electric dipole. The thing is clear now? Clear? So small charges placed at very small finite distance. Then the complete system is said to be your electric dipole. That the distance between these two charges is always taken as your twice L because आप समझोगे आगे why it is taken as your twice L. Clear? तो बस ये है कि दो चार्ज इक्वल अपोजिट हैं, उनके बीच जो डिस्टेंस है 2l है, और ये जो डिस्टेंस है आपकी बहुत ही कम डिस्टेंस है, बहुत बड़ी डिस्टेंस नहीं है. तो दिस कंप्लीट सिस्टम इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक डायपोल. क्लियर? द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर मैं इस लाइन को और एक्सटेंड कर दूं, इट इज सेड टू बी योर एक्सिस ऑफ डायपोल. व्हाट? इट इज कॉल्ड योर एक्सिस ऑफ डायपोल. क्लियर? The main characteristic of each electric dipole is your electric dipole moment, and in simple language it is called your dipole moment. In the case of electric dipole, you have to also study about the dipole moment represented by capital P. What is dipole moment? Clear? The dipole moment of any dipole is defined as the product of magnitude of either charge with the distance between the charges. It means dipole moment is defined as your q into 2l. Clear? What is dipole moment? Dipole moment of any electric dipole is defined as the product of magnitude of any charge with the distance between the charges. So q into 2l is said to be your dipole moment. Clear? Dipole moment is a vector quantity. It is a quantity of which type? It is a vector quantity. Clear? And it is a vector quantity and it is always directed from minus to positive charge. It means suppose it's a dipole, so the dipole moment of this dipole will always be directed from minus charge to positive charge. It means this is the direction of the dipole moment. ये डायरेक्शन का कोई हिसाब नहीं है कैसे आया ये, इसको आपको डायरेक्टली लर्न करना. आपके सिलेबस में ये डायरेक्टली क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया. क्लियर? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट वेरी फाइनाइट डिस्टेंस आर सेड टू बी इलेक्ट्रिक डायपोल. द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस आर कॉल्ड योर एक्सिस ऑफ डायपोल, एंड द product of magnitude of either charge with the distance between the charge is also called the dipole moment, and dipole moment is always directed from negative charge to positive charge. Clear? And the dipole always put negative charge on your left side and positive charge on your right side. Why it is so? So it will come in your future classes. Clear? So यहाँ पर इतना बात समझ में आ गया. Electric dipole उसका dipole moment. Now we are going to calculate the electric field of the dipole. Clear? So electric field of dipole we have to calculate at its two position. The first position is your at its axial position, and the second position is your at its equatorial position. Clear? It means if we are talking about electric field of dipole. Clear? अब बार बार उसको मैं electric dipole नहीं लिखूँ. We are going to calculate the electric field of dipole. Dipole में दो चार्ज होते हैं, ध्यान रखना. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल कैलकुलेट करने का हमारे पास कितने तरीके हैं या किन किन जगह पर कैलकुलेट करना है. वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल एट इट्स एक्सियल पोजीशन. इन विच पोजीशन? एक्सियल पोजीशन. और एंड इन विच पोजीशन? दैट इज योर इक्वेटोरियल पोजीशन. वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल एट इट्स एक्सियल पोजीशन एज वेल एज एट इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन. क्लियर? So what is the axial position? Correct? So the axial position is what? Suppose I had a dipole. Clear? That is your minus q and that is your plus q. And the line joining the dipole is called your axis of dipole. Clear? Now he is saying that what will be the electric field of this dipole? So my simple question, where? कहाँ पर हम इसकी electric field calculate करें? So somebody comes me and he is saying take the point at anywhere on the line
ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। अगर वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमें डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, अगर वो पॉइंट डायपोल की एक्सिस में किसी भी पॉइंट पर, तो वो डायपोल की किस पोजीशन में कहलाता है आपका, ये एक्सियल पोजीशन में कहलाता है। तो एक्सियल पोजीशन इज व्हाट, if the point at which we are going to calculate the electric field of dipole is on the axis of dipole, then the position of that point is said to be the axial position. ये बात समझ में आ रही है, क्लियर? And what is equatorial position? The equatorial position is what? Suppose it's your dipole, that is your minus q and it is your plus q, clear? And this is the axis, clear? If the point is on, somebody saying that कोई मुझसे पूछे कहाँ पर कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, मैं कहेंगे यार इसका इक्वेटोरियल पोजीशन पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन? इट मींस द लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। इसका मतलब लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस का आई एम गोइंग टू डू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इफ आई एम डूइंग लाइक दिस एंड टेकिंग अ पॉइंट ओवर इन दिस लाइन, यहाँ 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 कहीं भी ले सकते हो, ये पॉइंट डायपोल की किस पोजीशन में कहलाएगा आपको, ये इक्वेटोरियल पोजीशन में कहलाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो एक्सियल पोजीशन इज व्हाट, इफ द पॉइंट इज ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल, एंड द इक्वेटोरियल पोजीशन इज व्हाट, इफ द पॉइंट इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द एक्सिस ऑफ द डायपोल। दिस लाइन विल बाइसेक्ट दिस एक्सिस ऑफ द डायपोल। इट मींस जितनी इसकी लेंथ रहेगी उतनी इसकी लेंथ रहेगी। तो इट आई होप बोथ द पोजीशंस आर क्लियर। एक्सियल पोजीशन का एक और नाम होता है, दैट इज योर एंड ऑन पोजीशन और साइड ऑन पोजीशन भी इसको बोलते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग नाम है, बेसिकली आईसीएसई बोर्ड में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वेटोरियल पोजीशन का नाम होता है आपको ब्रॉड ऑन पोजीशन, क्लियर? ब्रॉड ऑन पोजीशन, ठीक? तो इन द बोथ द पोजीशंस वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल। इट मींस सिंपल सा, इट इज द फर्स्ट डेरिवेशन जो आप करने जा रहे हो, ठीक है, और जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो द नेक्स्ट हेडिंग इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल एट इट्स एक्सियल पोजीशन। बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पर ये। We are going to calculate electric field of dipole at its axial position. Clear? इसके लिए we have to form a dipole. Suppose it's a dipole. Here is your minus q and here is your plus q. Clear? The point where we are going to calculate the electric field, it is on the axial position. And where is the axial position? If we join the on the axis of the dipole, clear? This is the axis of dipole. Suppose we are going to take a point P over here where we are going to calculate this electric field of dipole. और पॉइंट कहीं भी आप रखोगे, चाहे वो एक्सियल को हो चाहे इक्वेटोरियल को हो, उस पॉइंट की डायपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कितनी लेनी है। तो सपोज इट इज द मिड पॉइंट ऑफ डायपोल, और मिड पॉइंट ऑफ डायपोल से इसकी डिस्टेंस कितनी है आपकी, ये स्मॉल आर। डायपोल की चार्जेस की बीच डिस्टेंस कितनी होती है, 2l, और अगर ये मिड पॉइंट हो चुका है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, l हो जाएगी, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, l हो जाएगी। इस P पॉइंट पर डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बस सिंपल सा सोचो, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके कारण होगी, इस चार्ज के कारण होगी और इस चार्ज के कारण होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमको चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? तो इस चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी, दिस डिस्टेंस इज r, इसमें से l जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा डिस्टेंस आपका r माइनस, मतलब प्लस q का यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो गया, r माइनस है। इस चार्ज की P पॉइंट से डिस्टेंस कितनी रहेगी आपकी, ये तो सिंपल सा है आपका, ये पूरा r है और इसको l कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा r प्लस। आई हैव कि ये आपको डिस्टेंसेस समझ में आ रहे हैं कि डिस्टेंसेस किस तरीके से लिया है मैंने, क्लियर? द पॉइंट इज ऑन एक्सियल पोजीशन, तो एक्सिस पर लिया और उसकी डिस्टेंस डायपोल के मिड पॉइंट से दी हुई है, कितनी डिस्टेंस पर है, वो r डिस्टेंस पर है। तब मेरा इस डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो चार्जेस से उस पॉइंट की क्या निकाली, डिस्टेंस निकाली। ये डिस्टेंस r माइनस एल आई और इसके रिस्पेक्ट में कितनी आई, r प्लस एल आई। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस q चार्ज के कारण होगा और माइनस q चार्ज के कारण होगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q, क्लियर? प्लस q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आई एम गोइंग टू टेक इट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q, E प्लस q इज इक्वल टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाय r माइनस l टू द होल स्क्वायर, क्लियर? और सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर ड्यू टू माइनस q चार्ज, तो उसका नोटेशन दे रहा हूं मैं, E ऑफ माइनस q इज हाउ मच, तो माइनस q चार्ज की पॉइंट डिस्टेंस कितनी है, r प्लस l है। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाई r प्लस l टू द होल स्क्वायर, क्लियर? ना तो हमसे इस पॉइंट पर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा, ना तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा, हमसे पूछ रहा P पॉइंट पर डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। डायपोल पर चूंकि दोनों चार्जेज आते हैं,
तो इसका मतलब P पॉइंट पर हमको दोनों चार्जेस के कारण क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो जब P पॉइंट पर दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ड्रॉ करनी पड़ेगी। प्लस Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे दूर होती है, तो P पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी आपकी, ये इधर होगी। माइनस Q चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके पास होती है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी आपकी, इधर होगी। P पॉइंट पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हैं आपकी, अपोजिट, इक्वल तो नहीं है भाई, क्योंकि एक में डिस्टेंस r प्लस एल है और एक डिस्टेंस कैसी है आपकी r माइनस एल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट तो नहीं है, इक्वल तो नहीं, लेकिन दोनों अपोजिट है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, E इज इक्वल टू, ये होगा बिगर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन दोनों में कौन बड़ा, सब कुछ सेम है, बस नीचे की डिस्टेंसेस देखो। जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। डिस्टेंस कम कौन सी, r माइनस एल, और ज्यादा कौन सी है, r प्लस एल। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस E ड्यू टू प्लस Q इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, E ड्यू टू माइनस Q। इसलिए P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी आपकी E प्लस Q माइनस कितना आएगा आपका, ये E माइनस Q आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यूज को रखना, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R माइनस L टू द होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R प्लस L टू द होल स्क्वायर। दोनों में से अपन कॉमन ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा और Q भी बाहर कॉमन आ जाएगा, बचेगा R माइनस एल होल स्क्वायर प्लस कितना, सॉरी यहाँ माइनस होगा, माइनस कितना बचेगा आपका 1/R प्लस एल टू द होल स्क्वायर। क्लियर। फिर दोनों तरफ का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा R प्लस एल होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा R माइनस एल होल स्क्वायर डिवाइड बाई R माइनस एल होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल कितना हो गया, ये होल स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद जब अगले स्टेप में जाएंगे तो इस होल स्क्वायर को क्या करेंगे, अपन ओपन करेंगे। तो जब ओपन करेंगे तब देखो कितना आ जाएगा, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस इसका भी कर लोगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl होल डिवाइड बाई a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। क्लियर। जब यहाँ नेगेटिव साइन ओपन करोगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2rl प्लस 2rl कितना हो जाएगा, 4rl हो जाएगा। क्लियर। ये हो जाएगा Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया 4rl डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द कितना आ गया आपका, ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर इतना भाई अब समझ में आ रहा होगा ये कुछ। तो यहाँ से E इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, ये देखो इसको ऐसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4 को लिखते हैं 2L इंटू 2R। क्लियर। इसको लिखते हैं 2L इंटू 2R होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द क्या है आपका, ये होल स्क्वायर। फिर यहाँ से Q इंटू 2L, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि चार्ज और चार्जेस के बीच डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या कहलाता है आपका, डायपोल मोमेंट कहलाता है ये। तो 1 ओवर कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह आ जाएगा P इंटू 2R डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। क्लियर। सो यहाँ से कितना आ गया आपका, ये डन। तो यही आपका फाइनल फार्मूला आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक। तो थोड़ा सा और अरेंज करके आप लिख सकते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल ड्यू टू इट्स एक्सियल पोजीशन इज योर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। क्लियर। बट शुरुआत में क्या कहा गया था कि ये जो डायपोल होता है आपका, ये जो डायपोल होता है, डायपोल की डिस्टेंस बहुत ही कम होती है और ये पॉइंट तो अपन कहीं भी ले सकते हैं। अभी यहाँ लिया, मैं यहाँ ले सकते हैं, मतलब कैपिटल आर की वैल्यू एल से अगर बहुत ज्यादा हो जाए, ये बात समझ में आ रही है भाई। पी पॉइंट तो कहीं भी ले सकते हैं, जितना लेंगे आर ज्यादा होता जाएगा, एल तो फिक्स है ना। तो अगर यहाँ पर अगर आप ये देखो तो अगर यहाँ पर ये कहा जाए कि अगर पी पॉइंट बहुत दूर चला जाएगा तो उस पोजीशन पर आर की वैल्यू एल से बहुत क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो अगर आर की वैल्यू एल से ज्यादा होगी तो यहाँ पर एल को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। और जैसे ही नेग्लेक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR डिवाइड बाई, नेग्लेक्ट करने का मतलब उसको जीरो कर दो, आर स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, क्योंकि जीरो होगा तो आर स्क्वायर टू द होल स्क्वायर मतलब आर टू द पावर 4, ये कैंसिल होकर पावर 3 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है डायपोल की, उसकी एक्सियल पोजीशन पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P डिवाइड बाई कितना होता है आपका, ये R क्यूब होता है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल ड्यू टू इट्स एक्सियल पोजीशन। आई होप ये कुछ आपके समझ में आया होगा ये। सो नाउ वी आर गोइंग टू द
calculating the electric field of dipole at its equatorial position. I told you the equatorial position means the point where we are going to calculate the electric field is at its perpendicular bisector of axis of dipole. Clear? और इनके और भी नाम होते हैं जो पिछले थोड़ी देर पहले मैंने बताया थे. Electric field of dipole at its equatorial position. Equatorial position. Clear? ठीक है, घंटी वंटी बजना बंद हो गया. मेरे घर में कुछ ज़्यादा पूजा पाठ माता जी करती हैं, अब डिस्टर्बेंस थोड़ा सा कम रहेगा. तो कम हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन. इक्वेटोरियल पोजीशन पर कैलकुलेट करना तो सबसे पहले डायपोल प्लॉट करना पड़ेगा हमको. ये सपोज इट्स द डायपोल, हियर इज योर माइनस क्यू एंड हियर इज योर व्हाट, हियर इज योर प्लस. हियर एंड द perpendicular bisector is this one. Either we have to put the point upward of the dipole or downside of the dipole. So we are going to take the point over here. Suppose this is the point where we are going to calculate the electric field of the dipole, and this point is is in the perpendicular bisector of the dipole. That's why this point is set to be its equatorial position. Now I am going to remove the heading of this one ताकि डायग्राम थोड़ा सा क्लियर दिखे आपको. क्लियर? यहाँ पर ही चूंकि ये आपका डायपोल के मिड पॉइंट से गया तो ये डिस्टेंस एल हो गई, ये डिस्टेंस एल हो गई. और मैंने कहा है कि पॉइंट कहीं भी रहे उसकी मिड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कितनी लेनी है, आर लेनी. जब यही पॉइंट एक्सिस में था तो ये डिस्टेंस आर ली थी, जब यही पॉइंट ऊपर चला गया तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, आर हो गई. क्लियर? अब हमें पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी. पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के कारण. तो भाई दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देते हैं, अपने यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं. क्लियर? भाई अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आपको निकालना है तो दोनों चार्जेस के उस पॉइंट से डिस्टेंस ही पता होनी चाहिए. तो कैसे डिस्टेंस निकालेंगे? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसका परपेंडिकुलर दिया, बेस दिया, हाइपोटेनियस आ जाए, कितना आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. सिमिलरली इसका भी आ जाए, कितना आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. कोई प्रॉब्लम इसमें ये? अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज 1/4 चार्ज डिवाइड बाई दिस स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज 1/4 चार्ज डिवाइड बाई दिस. क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेना है, दोनों की डिस्टेंसेस कैसी यहाँ पर आपकी सेम है, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी आपकी, मैग्नीट्यूड वाइज सेम आएगी. डायरेक्शन वाइज क्या होगी आपकी, डिफरेंट होगी. जैसे मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितनी होगी, 1/4 क्यू डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा. ये हो जाएगा ई प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4 क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस कितना हो गया आपका, ये एल स्क्वायर हो गया. कोई प्रॉब्लम इसमें? ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है आपकी, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण आ गई. सिमिलरली अपन नेगेटिव चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. यही करोगे, क्यू की वैल्यू क्यू रखोगे, डिस्टेंस भी दोनों की सेम आएगी. मतलब ये दोनों किसके आ गई आपकी, ये माइनस क्यू के इक्वल आ गई. और सपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ने कितना बोल दिया आपका, ये ई बोल दिया. सपोज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की आपस में इक्वल होगी, कितनी हो गई आपकी, ई. क्यों ई बोला तो समझ में आ रहा है, क्योंकि आगे भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है. क्लियर? फिर यहाँ पर क्या है, अब हमें यहाँ पर ना तो माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना प्लस क्यू की, हमें तो चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, डायरेक्शन बना के. प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उससे दूर. क्लियर? प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उससे दूर. ये यहाँ लिखी हुई है दोनों की. ये किसकी वैल्यू हो गई, ई प्लस क्यू की. माइनस क्यू किधर होगी, उसके पास होगी. ये वैल्यू किसकी हो गई आपकी, है माइनस क्यू की. दैट इज योर ई माइनस क्यू हो गई. कोई प्रॉब्लम इसमें? ये प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर. हमसे पूछा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, बड़े आसानी से बता सकते थे. अगर ये एंगल पता चल जाता किसी भी तरीके से तो अपन बड़े इजली पे बता सकते थे कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी होगी. ये बात समझ में आ रही है? इस एंगल को कैसे निकाल जाए, तो इसके लिए क्या है, अपन एज्यूम करते हैं अगर ये एंगल कितना आपका थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, ये थीटा ही तो होगा. क्यों होगा थीटा? अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा. क्योंकि भाई ये कौन सा ट्रायंगल है आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के सामने के एंगल्स भी क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं. तो इक्वल है ना यहाँ पर. ये अगर ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा. क्लियर? ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस दैट इज योर, या ऐसे ये कहा जाता है यहाँ पर, ध्यान समझने. ये कहा जाता है कि भाई यहाँ पर इस पी पॉइंट पर इसके बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो. ये तब कर रहे हैं जब अपने को एंगल नहीं पता है. ठीक है, अपने को एंगल नहीं पता तब अपन इस तरह से कर रहे हैं. अब चूंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये इस तरीके से ये बना हुआ है, तो अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. क्लियर? अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये अगर इस तरीके से बना हुआ है, क्लियर, और ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा.
और ये एंगल थीटा, तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? तो पी पॉइंट पर क्या एग्जैक्ट सिचुएशन मिल रही है? तो पी पॉइंट पर जो एग्जैक्ट सिचुएशन मिल रही है, इधर की ओर है ई माइनस क्यू और इधर की ओर क्या है आपका ये, दैट इज योर ई प्लस क्यू, और बीच में एक लाइन अपन ड्रॉ की है, ये एंगल कितना है थीटा, और ये एंगल कितना है आपका ये थीटा। ये बात समझ में आ रहा है? और जब ये एंगल्स आपको मिल चुके हैं तो आप इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कंपोनेंट निकालो। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ई माइनस क्यू को ई लिख सकते हैं, और इसको भी क्या लिख सकते हैं अपन, इसको ई लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल, दोनों को साइड में मैंने क्या बोला, ई बोला। ये बात समझ में आ रहा है? तो ई अगर इसका कंपोनेंट लेंगे इधर, तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा आपका, ई कॉस थीटा, और इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा इसके परपेंडिकुलर, इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा आपका, ई साइन थीटा। सिमिलरली इस ई का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा आपका, ई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा यहाँ पर आपका, ई साइन थीटा। तो ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बच रही, कितनी बच रही, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, तो कितनी बची, 2 ई कॉस थीटा। तो इसका मतलब एक्सियल पोजीशन पर, सॉरी इक्वेटोरियल पोजीशन पर डायपोल की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी, ये दैट इज योर ई कॉस थीटा प्लस कितनी आ रही है, ई कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 ई कॉस थीटा। ई की वैल्यू क्या रख सकते हो, ये सब कुछ ई की वैल्यू है, तो ई की वैल्यू क्या रख सकते हो आप, ये दैट इज 1/2 तो रहेगा ही है, 4 पाई साइन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस कितना है यहाँ पर आपका ये, दैट इज योर एल स्क्वायर, और इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा अपन ने एज्यूम किया था, अपन को कॉस थीटा यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है आपका एल, हाइपोटेनियस कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये एल डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस अंडर रूट को और क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो होल पावर 1/2। क्लियर? तो कॉस थीटा की भी अपन यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द 1 पावर कितनी हो जाएगी 2। इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर 1/2, सेम बेस पर पावर साइड हो जाएगी, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। और इसको कैसे लिख रहा हूँ ध्यान से सुनो, 1/4 पाई साइड नॉट, ये लिखा क्यू, इस 2 को ले आया एल के पास, क्यू इंटू 2l, नीचे देखो सेम बेस पर पावर्स को ऐड करो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर हाउ मच, इट इज योर 3/2 हो जाएगा। कोई समस्या है इसमें? फिर यहाँ से क्या हो जाएगी, q इंटू 2l कितना हो जाएगा आपका ये, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा p, डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज विद द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द होल पावर कितनी 3/2। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर? तो यहाँ पर कितना आ रहा है आपको ये, तो अगर यहाँ पर भी ये पॉइंट कहीं भी ले सकते हो, आर पॉइंट कितना भी ऊपर चला जाए, कितना नीचे चला जाए, तो अगर आर की वैल्यू एल से बहुत कैसी है ज्यादा, अगर आर की वैल्यू एल से बहुत ज्यादा है तो ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइड बाई एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करो, ये बचेगा आर स्क्वायर टू द पावर कितना 3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा r क्यूब आ जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। आई होप ये डेरिवेशन आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपन ने रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ का एंगल नहीं पता था, और एंगल अपन ने एज्यूम किया, इसलिए इस एंगल को फाइनल डेरिवेशन से हटाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, कुछ देखने का पॉइंट जो अच्छे से निकल गया यहाँ पर, ये तो ये कहा जाता है कि जो डायपोल की एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई थी वो कितनी थी आपकी, है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइड बाई आर क्यूब। इसकी जो इक्वेटोरियल पर निकल कर आ रही है, ये ई किस पर आपकी है, इक्वेटोरियल पर, दैट इज हाउ मच 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइड बाई आर क्यूब। इफ वी टेक द रेशियो ऑफ दीज टू, E at axial divide by electric field at your equatorial is equal to 1/4 pi epsilon naught 2p divide by r cube whole divide by 1/4 pi epsilon naught p divide by r cube. 1/4 pi epsilon naught will cancel from this one, p will cancel from p, and r cube will cancel from r. You get only 2 over here, that is your E axial divide by electric field of your equatorial इज इक्वल टू 2। इसका मतलब यहाँ से लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट योर
एक्सियल पोजीशन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट योर इक्वेटोरियल पोजीशन। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायपोल की होती है वो ट्वाइस होती है किसकी, इक्वेटोरियल की। कहाँ पर, एक्सियल पोजीशन पर। समझ में आया कुछ? नेक्स्ट टॉपिक इज योर फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाती। कैसे फोर्स लगाती है, तो बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पर ये कि जैसे अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना होता है आपका, F डिवाइड बाई क्यू नॉट। सो व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दैट इज योर क्यू नॉट इंटू ई। इट मीन्स द फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन जनरल इज योर F is equal to Q into E. This is the force applied by electric field. Clear? तो यहाँ पर क्या है आपका, F is equal to Q into E. अब ध्यान समझना है। Suppose electric field is like this. इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर है आपकी, ये ऊपर की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ। क्लियर? यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कितना रखा है आपका, Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कितना फोर्स लगाएगी, तो फोर्स तो लगाएगी Q इंटू ई, जो कि अभी तुरंत बताया मैंने। डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन किधर होगी, तो ध्यान समझना है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं तो जाहिर सी बात ये प्लस से निकली होगी और किधर की ओर जा रही होगी, माइनस की तरफ। इसका मतलब ये जिन भी चार्ज सिस्टम की लाइंस हैं उसका पॉजिटिव नीचे होगा और माइनस किधर होगा, ऊपर की ओर। अब अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है तो प्लस वाला क्या करेगा, रिपेल, माइनस वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान समझना ये, इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड in an electric field, an electric field will apply a force on that charge particle, and if the charge is positive charge, then the force applied by electric field will always be in the direction of electric field. इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी फोर्स लगाएगी किधर की ओर लगाएगी, ऊपर की ओर लगाएगी, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी आपकी, Q इंटू ई। क्यों ऊपर है, समझ में आ रहा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नीचे से ऊपर जा रही हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हमेशा प्लस से किधर जाती है, माइनस की ओर। इधर प्लस होगा, इधर माइनस, तो प्लस होगा तो इस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस होगा तो इस प्लस को खींचेगा। दोनों ही कंडीशन पर ये चार्ज किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। बट इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज ओवर हियर, तो इस नेगेटिव चार्ज पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, किधर की ओर फोर्स लगाएगी, अपनी डायरेक्शन के अपोजिट। कितना फोर्स लगाएगी आपकी, दैट इज Q इंटू, ये जो लाइन है पूरी फिजिक्स में कम से कम 50-60 बार आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाती, पहली बात कितना लगाती है, Q इंटू ई। किधर की ओर लगाती है, तो पॉजिटिव चार्ज पर अपनी डायरेक्शन की ओर फोर्स और नेगेटिव चार्ज पर अपनी डायरेक्शन की अपोजिट फोर्स। क्लियर? इतना ध्यान रखना। क्यों ऐसा है ये तो समझ लें, क्यों ये अपोजिट जा रहा है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन नीचे से ऊपर जा रही है तो हमेशा प्लस से माइनस जाती हैं। इसका मतलब यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है। तो अगर यहाँ प्लस है तो इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा और ये माइनस इस माइनस को रिपेल करेगा, इसलिए दोनों ही कंडीशन पे नीचे जा रहा है। क्लियर? तो व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज योर F इज इक्वल टू Q इंटू ई। क्लियर? And what is the effect, what is the direction of force? So positive charge will always move in the direction of electric field because the force applied by electric field is in the direction of electric field, and negative charge will move always opposite in the electric field because the force applied is in your opposite of the electric field. Clear? I hope ये समझ में आ गया होगा आपकी। फिर यहाँ पर तो नेक्स्ट टॉपिक है